السلام علیکم خواتین حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ شوکت کا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا باپ چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کی آمدنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے غربت کی وجہ سے شوکت پڑھ لکھ نہیں سکا۔ وہ چھوٹا تھا تو دن بھر گھر سے باہر کھیلتا پھرتا۔ کچھ بڑا ہوا تو اس کے باپ نے اسے سبزی منڈی میں ایک آڑتی کے پاس لگوا دیا، جہاں وہ ٹرکوں سے مختلف پھل اور سبزیاں اتار کر انہیں کرینے سے گودام میں رکھتا، پھر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر ان پھلوں اور سبزیوں کو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے چھوٹے دکانداروں کو فروخت کرتا تھا۔ اس کو یہ کام پسند نہیں تھا، لیکن باپ کے ڈر سے کرنا پڑتا تھا۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے برسوں بیت گئے۔ وہ 24 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈی اور شادی کر دی۔ اس کی بیوی کا نام نیلوفر تھا، مگر سب اسے نیلی کہتے تھے۔ نیلی ایک خوش اخلاق لڑکی تھی۔ شادی کے بعد وہ شوکت کے گھر آئی تو ہر ایک سے نہایت خندہ پیشانی اور اخلاق سے پیش آتی۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ محلے میں رہنے والے لوگوں سے بھی اس کا بہت اچھا سلوک تھا۔ وہ اپنے ساس سسر کی بھی بہت خدمت کرتی تھی۔ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ جب ملنے جلنے والے شوکت کی ماں سے یہ کہتے کہ اس کی بہو بہت اچھی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی۔ شوکت اس سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ وہ اسے اتنی اچھی لگتی تھی کہ اس کا دل کام پر جانے کو بھی نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ باپ بوڑھا ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا اور گھر کو چلانے کے لیے اسے ہر حال میں کام پر جانا پڑتا تھا۔ ان کی شادی کو کئی سال ہو گئے اور ان کے 2 بچے بھی ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کے دونوں بچے دوسرے بچوں کی طرح بہت خوبصورت اور بھلے بھولے نہیں تھے۔ نیلی ان کی دیکھ بھال اور پرورش کا خاص دھیان رکھتی تھی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ دونوں بچے خوب پڑھ لکھ جائیں۔ شوکت بچوں سے پیار تو بہت کرتا تھا، مگر نیلی کی طرح وہ ان کے مستقبل کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتا تھا۔ ایسی باتوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام ساجد اور بیٹی کا نام ندا تھا۔ وہ کچھ بڑے ہوئے تو نیلی نے انہیں گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا۔ شوکت کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے کبھی بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور نہ اس سلسلے میں نیلی سے کبھی گفت و شنید کی۔ اس کے ذہن میں تو بس یہ ہی ایک بات تھی کہ ساجد بڑا ہو کر کسی محنت مزدوری پر لگ جائے گا۔ ندا کا کیا ہے، وہ تو اپنے گھر بار کی ہو ہی جائے گی۔ اپنی لاپرواہی، نہ سمجھی اور غیر ذمہ داری کی بنا پر ایک طرح سے وہ تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر نیلی کی یہ سوچیں نہیں تھی۔ وہ رہتی تو گاؤں میں تھی جہاں کے لوگ سیدھے سادے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے، مگر اسے اس بات کا احساس تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ اس کا دل اس بات پر بہت کڑتا تھا کہ شوکت کو دن بھر کی محنت مشقت کے بعد بہت تھوڑے سے پیسے ملا کرتے تھے، جن سے گھر کا خرچ بھی مشکل سے چلتا تھا۔ اس کے نئے کپڑے بنے سالوں گزر چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی شوکت نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور دوسری وجہ یہ اس نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا۔ تعلیم حاصل نہ کرنا تو ایک مجبوری تھی، مگر کوئی ہنر نہ سیکھنا غیر ذمہ داری کے زمرے میں آتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود نیلی بڑی عقل مندی سے گھر چلاتی تھی۔ اس کے ساس سسر بوڑھے ہو گئے تھے اور اکثر بیمار رہتے تھے۔ وہ ان کی دیکھ بھال کرتی اور ان کی دوا وغیرہ کا دھیان رکھتی۔ اس نے پورے گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ ساجد اور ندا کی تعلیم پر بھی نظر رکھتی تھی۔ جس اسکول میں اس کے دونوں بچے جاتے تھے وہ بھی اسی اسکول میں 8ویں جماعت تک پڑھی تھی۔ اس کی خواہش تو بہت تھی کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے۔ یہ اسکول صرف 8 جماعت تک تھا۔ اگلی جماعتیں پڑھنے کے لیے اسے 10 کوس دور ایک دیہات کے ہائی اسکول میں جانا پڑتا۔ اتنی دور جانے کی اجازت اس کے ماں باپ نے نہیں دی، اس وجہ سے وہ آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ جس آرتی کے پاس شوکت کام کرتا تھا وہ بہت ہی پیسے والا تھا۔ اس کے بیٹے پڑھ لکھ کر دبئی چلے گئے تھے اور ان کے مشورے پر اس نے دبئی میں سبزی اور پھلوں کی ایک بہت بڑی دکان کھولی تھی اور پاکستان سے بہترین پھل اور سبزیاں وہاں بیچنے لگا تھا۔ شوکت اس کا ایک پرانا قابل اعتماد اور محنتی ملازم تھا۔ اس نے ایک اچھی تنخواہ پر اسے دبئی جانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس کے بیٹوں نے وہاں اس کام کو چلانے کے لیے ایک بہترین سیٹ اپ بنا لیا تھا
और मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए मुकामी लोग रख लिए थे। शौकत के दुबई जाने की खबर से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसके माँ बाप तो बहुत ही खुश थे। उन्हें ये उम्मीद हो गई कि बाहर की कमाई के आने से उनके बेटे की गुर्बत के दिन खत्म हो जाएंगे। खुशी तो नीली को भी हुई थी, मगर उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि शौकत उन लोगों से दूर चला जाएगा। दोनों बच्चे इससे बहुत मायूस थे। शौकत के परदेश जाने से वो भी उदास हो जाते। महीना भी नहीं गुजरा कि शौकत चला गया। साजद और निदा उसके चले जाने से उदास हो गए थे, मगर नीली ने उन्हें ये कहकर तसल्ली दी उनका बाप उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर गया है। वो छुट्टियों पर घर आएगा तो उनके लिए ढेरों चीजें लेकर आएगा। जाने से पहले शौकत ने करीबी शहर के एक बैंक में नीली का अकाउंट खुलवा दिया था और उसे ATM कार्ड भी दिलवा दिया था। गांव के स्कूल की हेडमास्टर ने उसको चेकबुक और ITM के बारे में चीदा बातें समझा दी थी। शौकत हर माह तनख्वाह मिलने पर एक अच्छी खासी रकम घर भिजवा दिया करता था। उसे इस बात का एहसास था कि उसकी गुर्बत के दिनों में उसके तमाम घर वालों ने बड़ी तकलीफें उठाई थी और हंसी खुशी उसका साथ दिया था। अब जब उसे दुबई में अच्छे पैसे मिलने लगे तो वो ये ही कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा पैसे घर भेजे ताकि उसके बीवी बच्चे और माँ बाप मजे से जिंदगी गुजारें। उसके कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। वो भी उसे यही बताते थे कि अब उनके घर वाले एक आसूदा जिंदगी गुजारते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं और कीमती कपड़े पहनकर घूमते फिरते हैं। उनके घर में बड़ी स्क्रीनों के डिजिटल TV, बड़े साइज के फ्रिज, एयर कंडीशन, गर्ल्स के दुनिया भर की चीजें आ गई हैं। उनकी बातें सुन सुनकर शौकत भी खुश होता था कि उसके घर वाले भी ऐसे ही मजे से रह रहे होंगे। दुबई में फलों और सब्जियों का काम बहुत बेहतर तरीके से चल निकला। शौकत का मालिक एक नेक और ईमानदार शख्स था। उसको अपने पाकिस्तान की इज्जत और इसका नाम बहुत अजीज था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी माल में कोई खराबी ना हो। उसकी इस अच्छी सोच की वजह से बहुत जल्द उसका कारोबार चल निकला था। शौकत भी बहुत लगन से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। उसका मालिक उस पर बहुत भरोसा करता था। पहले साल तो काम की ज्यादती की वजह से शौकत को छुट्टी नहीं मिली और वो चाहने के बावजूद पाकिस्तान ना आ सका। दूसरे साल भी उसे सिर्फ 10 दिन की छुट्टी मिली थी। वो खुशी खुशी पाकिस्तान आया। उसके साथ 2 बड़े सूटकेस थे जिसमें वो घर वालों के लिए तोहफे तोहफे लेकर आया था। एयरपोर्ट से उसने घर जाने के लिए टैक्सी की थी। वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो ये देखकर खुश हो गया कि उसके बीवी बच्चे दरवाजे पर ही खड़े हैं। उसने एयरपोर्ट से उन्हें इतला दी थी कि वह थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला है। बच्चों को देखकर उसे कुछ हैरत हुई। उनके जिस्मों पर उसी तरह के मामूली कपड़े थे जैसे वो उसकी मौजूदगी में पहना करते थे। उनके पाँव में कीमती जूते भी नहीं थे। उन्होंने नायलॉन की चप्पलें पहनी हुई थी। बच्चों को इस हालत में देखकर वो सोच में पड़ गया। उसने दिल में कहा वो इस बारे में नीली से जरूर बात करेगा, लेकिन उसके बरक्स उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके जूते भी बहुत प्यारे थे। टैक्सी उसके घर के दरवाजे के आगे रुकी। वो जैसे ही नीचे उतरा उसके दोनों बच्चे उससे लिपट गए। उसके माँ बाप सहन में चारपाइयों पर बैठे हुए थे। उसे अंदर आता देखकर उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। उसे खुशी हुई थी कि उसके माँ बाप बहुत अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उनकी सेहत भी अच्छी लग रही थी। उसे अपने घर में बेहद सफाई नजर आई। नीली ने पूरे घर में रंग करवाया था। जहाँ जहाँ मुरम्मत की जरूरत थी वो भी उसने करवा दी थी। घर में हर चीज करीने और साफ सुथरे तरीके से रखी हुई थी, मगर तमाम चीजें वही थी जो 2 साल पहले वो छोड़कर गया था। शाम हो चुकी थी और सूरज ग्रूब होने वाला था। नीली ने शौकत के आने की खुशी में उसकी और बच्चों की पसंद के बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाए थे। खाने के दौरान उसका बाप उससे दुबई के बारे में बातें करता रहा। उसकी माँ खाना खाते हुए उसे मुसलसल मोहब्बत भरी नजरों से देखे जा रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। खाने के बाद शौकत ने सूटकेसों में से चीजें निकाल कर सबको दी। बच्चों के लिए वो बहुत से कपड़े और खिलौने लाया था। रात को जब दोनों बच्चे सो गए तो शौकत ने नीली से कहा, नीली, मुझे बहुत खुशी है तुमने मेरी गैर मौजूदगी में घर का निजाम नहायत उम्दा तरीके से चलाया। अम्मा मुझे बता रही थी कि तुम उन लोगों का बहुत ख्याल रखती हो और उनकी बहुत खिदमत करती हो। मैं समझता हूँ ये तुम्हारा मुझ पर एक एहसान है। नीली मुस्कुराकर बोली, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। घर के बुजुर्गों की खिदमत करने से घर में बहुत बरकत होती है। वैसे भी आप भी इतनी दूर चले गए हैं, अब सब चीजें मुझे ही देखना पड़ती हैं। साजिद और निदा तो अभी छोटे हैं, लेकिन उनकी ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जाने के बाद दोनों बहन भाई ने मुझे जरा भी तंग नहीं किया। वो पाबंदी से स्कूल जाते हैं
और कभी छुट्टी के लिए जिद नहीं करते। आप उनकी तालीमी रिपोर्टें देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम उनकी तालीम पर इतनी तवज्जो देती हो। मुझे अब अंदाजा होता है कि मैंने ना पढ़कर कितनी बड़ी गलती की थी। मुझे वहाँ बहुत मेहनत करना पड़ती है। अगर मैं भी तालीम याफ्ता होता तो मजे से मेज कुर्सी पर बैठकर काम करता। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मुझे अम्मा बताती हैं, आप छोटे थे तो उस वक्त पैसों की बहुत तंगी थी। हाँ ये तो है, शौकत ने कहा। फिर कुछ देर खामोश रहकर बोला, एक बात मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर रही है कि अम्मा अब्बा तो बहुत अच्छी हालत में हैं। मैंने देखा है उनके संदूक में नए नए कपड़े भरे हुए हैं, मगर मुझे तुम और बच्चे मामूली कपड़ों में ही नजर आए और घर में कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ वही है जो मैं छोड़कर गया था। हालांकि मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में काफी पैसे भिजवाता हूँ। नीली कहने लगी, आपके भेजे हुए पैसों को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ। पहले हिस्से से घर का खर्च चलाती हूँ। अम्मा अब्बा की दवाइयाँ और उनके कपड़े लत्ते भी उन्हीं पैसों से लेती हूँ। मेरा और बच्चों का काम भी चल ही जाता है। कभी कभार कहीं आने जाने के लिए मैंने अपने और उनके 2 बड़े अच्छे जोड़े बनवा कर रखे हुए हैं। दूसरे हिस्से को मैं बैंक में ही जमा रखती हूँ। अल्लाह का शुक्र है आपके भेजे हुए आधे पैसे से हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अच्छा, तो बैंक में रकम इसलिए जमा कर रही हो इस पर मुनाफा मिलता रहे? शौकत ने मुस्कुराकर कहा, बैंक का मुनाफा सूद होता है और सूद तो हराम है। हमारे मजहब ने इससे बचने के लिए सख्ती से ताकीद की है। मैंने तो मास्टर साहब से मशवरा करके एक फार्म भी बैंक में जमा करवा दिया है कि मुझे जमाशुदा रकम पर मुनाफा नहीं चाहिए। ये तो तुमने अच्छा किया। सूद हराम है, मगर तुम्हारी इस बचत की आदत पर मुझे जरा खुशी नहीं हुई। मैं परदेश इसलिए गया हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह जिंदगी गुजार सको, तुम खुद भी और बच्चों को भी बहुत ऐश करवा सको। मैं पैसों के इस दूसरे हिस्से को हाथ भी नहीं लगाती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी तंगी का सामना करना पड़े। पता है, ये पैसे मैं साजिद और निदा की आला तालीम के लिए जमा कर रही हूँ। हमारे गांव का स्कूल 8 जमात तक है। कुछ ही साल बाद अल्लाह की मेहरबानी से ये दोनों 9वीं जमात में पहुंच जाएंगे। मैं उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर में दाखिला करवाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर शौकत हैरतज़दा रह गया। जो बातें उसकी सोचने की थी वो बातें उसकी बीवी सोच रही थी। उसने कहा, नीली, तुमने कमाल कर दिया। तुमने वाकई एक बहुत अच्छी बात सोची। अब जमाना बदल गया है। तालीम की रोशनी घर घर फैल रही है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम ना दिलवाएं, ये उन पर जुल्म होगा। इस कदर एहतियात से चलने के बावजूद मैं बच्चों के खाने पीने और उनकी दूसरी जरूरियात का बहुत ख्याल रखती हूँ, मगर फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती। हमारे बच्चे भी सादगी पसंद हैं। वो ये नहीं सोचते उनका बाप बाहर रहकर कमा रहा है तो वो खूब ऐश करें। उन्हें भी आपकी तकलीफों का एहसास होता है। उस रोज साजिद मुझसे कह रहा था, जब वो खूब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा और किसी अच्छी सी जगह पर नौकरी करने लगेगा तो आपसे कहेगा, अब्बा अब आप घर बैठकर आराम करें, अब मैं कमाऊंगा। निदा डॉक्टर बनना चाहती है। वो कह रही थी डॉक्टर बनकर वो गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी। थोड़ी देर बाद नीली चाय बनाने के लिए चली गई। उसकी बातें सुनकर शौकत को बहुत अच्छा लगा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अक्सर लोगों का ख्याल है कि लड़कियों को तालीम दिलाना फजूल है, लेकिन उनका ये ख्याल किस कदर गलत है। नीली अगरचे 8 जमात तक पढ़ी है, मगर उसके जहन में उस तालीम की वजह से कितने अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं। जब नीली चाय की 2 प्यालियां लेकर आई तो शौकत बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर नीली भी मुस्कुराने लगी। उसने चाय की 1 प्याली उसे दी और बोली, खुदा का शुक्र है आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो मैं वाकई बहुत हूँ, शौकत ने कहा। जो बातें मेरे सोचने की थी तुमने ना सिर्फ उन्हें सोचा बल्कि उन पर अमल भी कर रही हो। मुझ जैसे गैर जिम्मेदार शोहर की तुम्हारे जैसी जिम्मेदार बीवी हो तो वो भला खुश क्यों नहीं होगा। उम्मीद है ख़वातीन और हज़रात हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस भी बनेगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। जाने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। नई वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।